Hello and welcome to all those who are studying from this video. So students, as we have already studied multiple parts of this history chapter 1 previously, in this video we are going to continue with 3.1 left portion, and in this 3.1 left portion today we are going to cover this topic that is telling us how languages played an important role in developing nationalist sentiments and multiple languages which became a symbol of the struggle against multiple other dominant forces. And after that, 3.2 will start, that is hunger, hardship, and popular revolt, in which we'll see that how Europe suffered from economic hardships and how the population rose, how the hunger situation they faced, and there will be a story told to you, that is a common village of Silesia. Okay, so let's continue with the explanation. Okay, the emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit. Why they have started, maintaining a collection of folklores, songs, and poetry. This is not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. ये एक मीडियम था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताया जा सके कि हमारी नेशनल स्पिरिट from the ancient time, whatsoever it was, it should be conveyed to even to the illiterate population or the audience. This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers. यहाँ पे पोलैंड का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि स्पेशली ऐसा किया गया पोलैंड के केस में ऐसा किया गया कि पुरानी चीजें, पुरानी नेशनल स्पिरिट को ताजा करने के लिए इन सब चीजों को कलेक्ट किया गया वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को लेकर, ताकि पोलैंड के लोगों को वो चीजें याद रहे. Which has been partitioned at the end of the 18th century by the great powers. कौन कौन से पावर थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस कर रखा था पोलैंड को या उसमें हिस्सेदारी थी? रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया. Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. इतनी कंट्रीज ने अपने अधिकार किए पोलैंड पर, उसके बाद भी पोलैंड ने अपनी नेशनल फीलिंग्स को जिंदा रखा. किसके थ्रू? म्यूजिक एंड लैंग्वेज. कैरोल कुर्स्पिंसी, for example, celebrated the national struggle through his operas and music. कैरोल कुर्स्पिंस्की कोई फेमस पर्सनालिटी होंगे जो बिलोंग करते हैं पोलैंड को, उनके बारे में बताया गया है. उन्होंने अपने नेशनल स्ट्रगल को ओपेरा एक म्यूजिक सिंगिंग फॉर्म है, ठीक है, म्यूजिक और ओपेरास के थ्रू सेलिब्रेट किया. टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनाइज एंड मुजुर्का इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स. अपने जो फोक डांसेस थे उनको नेशनलिस्ट सिंबल्स बनाकर उनको सेलिब्रेट किया. नाउ दिस सेकेंड पैराग्राफ इज अबाउट लैंग्वेज. लैंग्वेज का क्वेश्चन अलग से कभी कभी पूछा जाता है, तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर ले साइड में, आप इंपॉर्टेंट की हेडिंग डाल दें, ठीक है. लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. भाषा का क्या रोल था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने का? देखिए, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपनी कंट्री में भी देख सकते हैं, those who are Hindi speaking people, they are obsessed with Hindi. Those who are, especially you can see like in southern India, people are very much obsessed word would be quite a negative. You can say they are highly respect paying people to their mother tongue. Tamilians, Canadians, जितने भी साउथ की भाषाएं हैं आप देखोगे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. डू नॉट like the northern Hindi language. English is taken as the medium of communication there, but north में क्या है, हम English को एक standard symbol मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. अपनी जो आपकी मदर टंग होती है, that should be
रिस्पेक्टेड बाय यू एट एनी कॉस्ट, चाहे वो आपकी कोई डायलेक्ट हो, आपकी मदर टंग जैसी भी है, यू शुड पे रिस्पेक्ट. Okay, let's continue. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. पोलैंड की भाषा को जबरदस्ती स्कूल से और बोलचाल की भाषा से हटाने की कोशिश करी जब रशिया ने उसको ऑक्यूपाई किया था, और पोलिश लैंग्वेज को रिमूव करके रशियन लैंग्वेज का प्रोपोगेशन स्टार्ट हुआ हर जगह पोलैंड में. In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. एक आर्म्ड रेबेलियन हुआ पोलैंड में रशिया के खिलाफ, जिसको अल्टीमेटली क्रश कर दिया गया था. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. ठीक है, जब हथियारों से आप कोई वॉर या रिबल नहीं जीत सकते या उस टाइम में नहीं जीत पाए, तो कोई एक ऐसा वेपन रेडी करना होता है जिससे एनिमी हारता ही हारता है. डेफिनेटली ही विल एक्सेप्ट द डिफीट, और अगर डिफीट नहीं भी एक्सेप्ट करता तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता. जो ये बात यहाँ पे लिखी है, जब आर्म्ड रेबिलियन में पोलैंड के लोग जीत नहीं पाए, क्रश कर दिए गए, तो पोलैंड के जो क्लर्जी पीपल थे, उन्होंने अपनी भाषा को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया. कौन सी भाषा? पोलिश भाषा. क्या किया होगा? उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली पोलिश लैंग्वेज ही इस्तेमाल की होगी बात करने के लिए. रशियन लैंग्वेज को उन्होंने बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी. ठीक है, आप आज भी देखते हैं बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो चाहे वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, इंग्लिश में बात करना पसंद नहीं करते. दे डिलीवर देयर स्पीचेस इन हिंदी ओनली, विच इज द लैंग्वेज ऑफ इंडिया. जैसे महात्मा गांधी का आप स्ट्रगल टाइम पढ़ेंगे तो उन्होंने भी इस बात को बहुत प्रमोट किया कि जो भी हमारी मातृभाषा है शुड बी रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड. वेपन की तरह भाषा को इस्तेमाल करना ये कोई मतलब ऐसा भी नहीं था कि एक किसी को नुकसान पहुंचा रहा हो, मगर हाँ, रशियन अथॉरिटी के लिए ये एक चैलेंज था कि क्लर्जीज, पोलिश क्लर्जीज उनकी भाषा को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे. ठीक है, पोलिश वॉज यूज्ड. अब पोलिश भाषा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते थे? पोलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. सबसे ज्यादा उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया जब पोलिश लोग एक जगह चर्च में इकट्ठे होते थे, तो वो आपस में पोलिश में बात कर रहे हैं. सारे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पोलिश में दिए जाते थे. एज अ रिजल्ट, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russia. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रशिया आप पे रूल कर रहा है, आप उनकी भाषा को एक्सेप्ट करने के बजाय पोलिश भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो भी चर्च के प्रीस्ट या बिशप्स थे, दे वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज. ये क्या क्यों भेजा? एज अ पनिशमेंट दे वर सेंट, कि आप रशियन भाषा में क्यों नहीं कर रहे थे प्रीचिंग्स, व्हाई यू वर यूज इन पोलिश. द यूज ऑफ पोलिश came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. ठीक है, रशियन लोगों के अगेंस्ट, रशियन रूल के अगेंस्ट पोलिश लोगों का ये तरीका था कि हम आपके अगेंस्ट ही जाएंगे, बिकॉज यू आर डोमिनेटिंग अस. वी आर नॉट गोइंग टू speak in your language, we will definitely speak in our language. So Russian dominance के against Polish language became a symbol of struggle. So this paragraph is important when the question comes. Language too played an important role in developing nationalist sentiments. Explain the statement. So this kind of a statement, this example of Poland would be used by you in framing your answer. Hope this content is clear to everybody. Now 3.2. Okay, before going to 3.2, just see here, it's a purple box given about the Grimm brothers, folk tales and nation building.
ठीक है, हम लोग इस कंटेंट में बात कर रहे हैं फोक टेल्स के बारे में, फोक चीजों के बारे में। तो यहाँ पे ग्रिम ब्रदर्स के बारे में डिटेल दिया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं कि ग्रिम ब्रदर्स दो भाई थे, जैकब एंड विलेम ग्रिम। ठीक है, ये जर्मनी के थे। इन्होंने फोक टेल्स के कलेक्शन में, फेरी टेल्स के कलेक्शन में क्या रोल प्ले किया और क्या चीजें थी जो बहुत फेमस थी। ठीक है, आप टाइम निकाल कर इसको भी एक बार रीड करेंगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि फेरी टेल्स, द फेमिलियर नेम ऑफ फेरी टेल के बारे में क्या डिटेल है, इसमें इनका क्या रोल था, ये इसमें आप डिस्कशन पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ओके। 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, यानी कि यूरोप की हालत खराब हुई 1830s। दिस वाज द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. ये आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा है कि किसी भी कंट्री, किसी भी किंगडम हो या कोई भी एरिया हो, वहां पे अगर इकोनॉमिक हार्डशिप आ रही है तो उसका एक फैक्टर अक्सर देखा गया है, वो क्या होता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century was seeing enormous increase in population all over Europe. In most countries, there were more seekers of jobs than employment. Job shortage थी, जॉब ढूंढने वाले ज्यादा थे, जॉब मार्केट्स में कम थे। Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. ये लाइन अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन डिमांड करती है, सिंपल भी है बट इसका आप कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, माइग्रेशन। जब क्या काम की कमी होती है तो ज्यादातर देखा गया है कि रूरल एरिया से लोग सिटीज की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। क्योंकि रूरल एरिया में फैसिलिटीज नहीं है, वर्क नहीं है, तो क्या करते हैं, वो शहरों की तरफ भागते हैं। शहरों की तरफ जब ज्यादा पॉपुलेशन आती है तो सिटीज क्या हो जाती है, ओवर क्राउडेड होती है। ओवर क्राउडेड है डेफिनेटली, जो गांव से चले आए हैं ढेर सारे लोग, उनके पास शहरों में रहने की जगह नहीं है, देन दे आर क्रिएटिंग स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियां क्रिएट हो जाती हैं। सो दिस इज हाउ cities becomes overcrowded. Small producers in towns were forced face were often faced with stiff competition from imports of cheap machine made goods from England. अब ये अलग ही तरह का प्रॉब्लम था उस टाइम का। क्या प्रॉब्लम था, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, वो जो हैंड वर्क करते थे, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते थे, उस हैंडमेड प्रोडक्ट को स्टिफ कंपटीशन देता था मशीन मेड क्लोथ। क्यों, हाथ से बने हुए कपड़े बनने में टाइम भी लगता था, इसलिए वो महंगे होते थे। बट इंग्लैंड से इंडस्ट्रीज से बनकर जो मशीन मेड चीजें आती थी, चाहे वो क्लोथ हो चाहे वो दूसरी और चीजें हो, उनमें टाइम कम लगता था, मटेरियल भी नॉर्मल सा हो सकता था, और वो इसीलिए मार्केट में चीप बिकता था। तो इस वजह से बहुत टफ कंपटीशन था मार्केट में स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए, क्योंकि हैंडमेड चीजें जनरली महंगी होती थी, तो महंगे का अल्टरनेट लोगों को मिला मशीन मेड थिंग्स, जो कि ज्यादातर इंग्लैंड में प्रोड्यूस हो रहा था। इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट, मतलब पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। ठीक है, तो इंग्लैंड ने ही मार्केट को रूल किया, सबसे पहले मशीन से बने हुए सामानों को मार्केट में उतारा, खूब सारा बेनिफिट कमाया। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में ही कौन सा वर्ड यूज किया, कॉटन है ना, कपड़ा, क्लोथ। ठीक है, तो स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन में इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partially machined. ज्यादातर टेक्सटाइल प्रोडक्शन कैसे होता था, घरों में या छोटी छोटी वर्कशॉप्स में बनता था, वो शायद बहुत ही सिंपल मशीन्स का इस्तेमाल होता था, नॉर्मल जो टेक्सटाइल प्रोड्यूस किया जाता था।
in those origins of your in those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power. यूरोप के वो रीजन्स जहां एरिस्टोक्रेसीज अभी भी पावर में थी, पीजेंट्स स्ट्रगल करते थे. क्या पीजेंट्स का स्ट्रगल था? बिकॉज दे वर बर्डन्ड विद फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस. अभी भी उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत सारा डेट हुआ करता था. कहाँ पे? जहां पे एरिस्टोक्रेसीज अभी भी एंजॉय कर रही थी पावर को, वहां पीजेंट्स बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे. उनके पास फ्यूडल ड्यूज थे, बहुत सारे डेट्स हुआ करते थे या बड़े ऑब्लिगेशंस थे. The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. सब जगहों पे प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू हो जाती थी? सबसे ज्यादा यहाँ पे हम लोगों ने कितनी कितनी चीजें पढ़ी हैं. एक हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिक हार्डशिप्स के क्या क्या रीजंस थे. इस पैराग्राफ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि क्या रीजंस थे इकोनॉमिक हार्डशिप के. टॉपिक क्या है? हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट. हंगर यानी कि भूखे होंगे लोग, कठिनाइयां परेशानियां होंगी, तो रिजल्ट क्या होगा? पॉपुलर रिवोल्ट, है ना, रिवोल्ट होगा फिर. ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंक्रीज इन पॉपुलेशन. पहला प्रॉब्लम क्या है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन. दूसरा क्या है? लेस जॉब्स. हम्म फिर क्या पढ़ा? तीसरा क्या है? माइग्रेशन. फर्स्ट इज increase in population, second is less jobs, third is migration, fourth is stiff competition in between small producers and machine made goods. Then what we studied, the point is European aristocracies where they were enjoying power, peasants were struggling with the burden of feudal dues and obligations. Another point, very important, the rise of food prices. Any year, if the prices of food are increased or bad harvest, this was the disaster to the whole town or the country. फूड प्राइसेस जैसे ही बढ़ते थे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी. इन द ईयर 1848 was one such year. ऐसा ही एक साल था 1848 का. हम लोगों ने कहाँ से पढ़ना शुरू किया? 1830. और ये क्या है? 1848 यानी 18 इयर्स, 18 सालों से ये कंडीशन चल रही होगी. इमेजिन लोगों के हाल क्या हो गए होंगे. इस साल में क्या हुआ? फूड शॉर्टेज, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स. किस बारे में बात हो रही है? रिवोल्ट. तो क्या हुआ? 1848 में सड़कों पे उतर आए पेरिस के लोग. वजह क्या थी? फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी. बैरिकेड्स वर इरेक्टेड, यानी कि बैरिकेड्स जो लगाए गए थे रोकने के लिए लोगों को, सब हटा दिए गए, उखाड़ के फेंक दिए गए. लुई फिलिप, याद है लुई फिलिप फ्रांस का जो नया राजा बना था कंजर्वेटिज्म के बाद, ट्रीटी ऑफ वियना के चलते, बर्बन डायनेस्टी का आखिरी राजा लुई फिलिप बना. ही वॉज फोर्स टू फ्ली, भाग गया वो इतने बड़े रिवोल्ट को देखकर अचानक से. was forced to flee yet left the country. A national assembly proclaimed a republic. राजा के भागते ही क्या चेंजेस आए? नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक. दोबारा से फ्रांस बनता है रिपब्लिक. ग्रांटेड सफरेज टू ऑल adult males above 21 and guaranteed the right to work. नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट व सेटअप. ठीक है, इस रिवोल्ट का रिजल्ट क्या हुआ? नेशनल असेंबली ने देश को रिपब्लिक डिक्लेयर किया. जितने भी मेल्स हैं 21 ईयर के ऊपर, उनको राइट टू वोट दिया, सफरेज दिया, राइट टू वर्क दिया. नेशनल वर्कशॉप यानी गवर्नमेंट की तरफ से वर्कशॉप्स बनी जिसमें लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट सेटअप किए गए. ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे फीमेल्स को सफरेज की बात नहीं की गई है. यहाँ पे ये एक लूप होल है. ठीक है, कंटिन्यू. अर्लियर in 1848, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles.
एक और इवेंट दिया है, अभी आपने जो इवेंट पढ़ा था वो 1848 का था, अब ये दिया है 1845 का। वीवर्स, वीवर्स जानते हैं आप, है ना, कपड़ा बुनने का काम जो करते हैं। वीवर्स इन सिलेसिया, यहाँ पे एक रिवोल्ट हुआ, पॉपुलर रिवोल्ट था। किसके बीच में हुआ था? वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच। कॉन्ट्रैक्टर्स जो उनको काम देते थे, कॉन्ट्रैक्ट देते थे, सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल, और प्रोडक्ट बन जाने के बाद, ऑर्डर फिनिश होने के बाद उनको पेमेंट करते थे यूजुअली। बट 1845 में सिलेसिया में प्रॉब्लम क्या हुई? रॉ मटेरियल तो मिला, बट प्रोडक्ट फिनिश्ड टेक्सटाइल बनने के बाद ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। उनका पेमेंट क्या किया? बिल्कुल ड्रास्टिकली ड्रॉप कर दिया, घटा दिया। जैसे कि भी उस काम के आपको 1000 रुपीज मिलने हो, अब वो कह रहे हो कि नहीं 100 या 150 आपको देंगे, बस इससे ज्यादा नहीं देंगे। सो दैट इज अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन पेमेंट। द जर्नलिस्ट विलियम वुल्फ, एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इस इवेंट को कवर किया था अपने मैगजीन में, मैगजीन या न्यूज़पेपर जो भी वो वर्क करते थे जिसमें। सो विलियम वुल्फ डिस्क्राइब द इवेंट इन अ सिलेसियन विलेज एज फॉलोज। ये विलियम वुल्फ की लाइंस हैं जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे। इन द विलेज वेयर 18,000 inhabitants were there, they were all cotton weaving in the most widespread occupation। ठीक है, उस विलेज की वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन क्या थी? कॉटन वीविंग, कॉटन कपड़ा बनता था। The misery of the workers is extreme. The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of the goods they order। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्कर्स की क्या थी? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स को पता था कि दे ऑल आर इन नीड ऑफ जॉब्स, बहुत सारा काम सबको चाहिए, गरीबी है, तो उसका फायदा उठाया उन्होंने, दे टुक एडवांटेज ऑफ दैट, और उन्होंने उनके काम के बदले पैसे बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर दिए। व्हाट हैपेंड देन? ऑन 4th June at 2 p.m, ईयर सेम है 1845, 4th June 2 p.m, a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding higher wages। बहुत सारे ये वीवर्स थे, एक बड़ा लार्ज क्राउड चलता है, अपने अपने घरों से निकलते हैं, मार्च करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके मेंशन, मेंशन मतलब बहुत बड़े घर, किले जैसे बहुत बड़े घर होते हैं, उनसे हाई वेजेस की डिमांड करते हुए ये क्राउड उनके घरों की तरफ, उनके मेंशन की तरफ आगे बढ़ता है। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटिवली। ठीक है, उनको रोकने की कोशिश करी गई, जैसा भी अच्छा बिहेव नहीं किया गया उनके साथ। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इन द हाउस। जब उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको डराया धमकाया या उनको मारने की कोशिश करी गई, तो उन वीवर्स के क्राउड का एक ग्रुप घर में फोर्सफुली घुस जाता है, मेंशन, कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन में फोर्सफुली घुसता है, स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पैन्स, फर्नीचर, पोर्सिलेन यानी उनकी कीमती चीजें, फर्नीचर, खिड़कियां खूबसूरत सी सब तोड़ दी जाती हैं। अनदर ग्रुप broke in the storehouse, plundered it of supplies of cloth which they tore to shreds। इतने नाराज, इतने गुस्सा कि स्टोर हाउस में जो दूसरा ग्रुप घुसता है, वहां पे जो बना हुआ कपड़ा रखा होता है, उनकी खुद की मेहनत का होता है, वो उससे भी टुकड़ों टुकड़ों में टीयर कर देते हैं, फाड़ देते हैं। The contractor fled with his family to a neighboring village। कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली के साथ भाग जाता है। Wherever refused to shelter such a person, जिस गांव में भाग के जाते हैं वो लोग भी उसको शेल्टर देने से मना कर देते हैं। He returned 24 hours later having requestioned the army। requestioned the army बदले 24 घंटे बाद लौटता है, तो आर्मी के साथ लौटता है। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट। और जब आर्मी के साथ लौटता है तो रिजल्ट क्या होता है? 11 वीवर्स वर शॉट बाय द आर्मी। तो इस तरह के रिवोल्ट्स थे जिसमें देखो, जो भी हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं, देयर इज अ वेरी कॉमन थिंग।
गरीबी होगी, पॉपुलेशन का बढ़ना, फूड शॉर्टेज, जॉब की कमी। हमेशा हमेशा किसी भी कंट्री में आप देखोगे जहां भी ये सब चीजें हैं तो कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। हिस्ट्री हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम ये जाने कि पास्ट में जो प्रॉब्लम्स थी उनकी वजह क्या थी। और अगर हमें वजह पता चल जाए देन वी कैन सॉर्ट आउट द करंट टाइम प्रॉब्लम। अगर हिस्ट्री पढ़ने के बाद भी हमें सोल्यूशन निकालना नहीं आया तो फिर देयर इज नो सेंस of studying this subject. So students, this part is completed. In next video, I will start this part 3.3. Okay, just keep revising this content. Hope my explanation is helping you in understanding this chapter. So till then, goodbye everyone. We'll meet in next video. Thank you.